थोड़ी देर के लिए सब कुछ हम भूल जाएं. जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग फॉर ए while. Inhale deeply and slowly, and also exhale it deeply and slowly. Focus your mind and your breathing. Forget everything outside of your body. लंबी सांस अंदर भरेंगे और धीरे से, और बाहर भी लंबी सांस ही निकालेंगे. अपने मन को सांसों की गति पर केंद्रित करेंगे. Just be relaxed, cool and calm. Don't be hurry. बिल्कुल शांत हो जाएं. हर तरह की समस्या से, तनाव से आप दूर हो जाएं. Deep breathing and deep breathe out. लंबी सांस पर धीरे धीरे अंदर भरें और लंबी सांस ही बाहर निकालें. Don't be in hurry. Do it smoothly, politely, and slowly. Now come back to your regular breathing. Close your eyes. Your body is straight. Just watch your breathing. Breathe in, breathe out. Focus your mind on your breathings. Nothing else. Forget everything. Smiling in your face. एक लंबी सांस अंदर भरेंगे और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण. इनहेल डीपली एंड विद एक्सहेलिंग इट chant a long Om. Rub your both palms and put it in your eyes and slowly open your eyes. अब आप शांत हो गए हर तरह की भागदौड़ से, टेंशन से. अब गायत्री मंत्र. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है, तो तुझसे ही पाते प्राण हम. दुखियों के कष्ट हरता है, तो तेरा महान तेज है. छाया हुआ
सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते हैं तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। O divine creator, remove all the ills and evils from us and endow us with all that is noble. Om Hiranyagarbhah Samavartatagre Bhutasya Jatah Patirekāsit Sadādhāra Prithivim Dhyamute Mam Kasmai Devaya Visha Vidhema. The bearer of luminous body and Lord of all beings was alone present in the beginning. He sustains this earth and all radiant regions. May we offer our oblation to that blissful being. Om Ya Atmada Balada Yasya Vishwa Upasatik Prashisham Yasya Devaha Yasya Chayamritam Yasya Mrityuhu Kasmai Devaya Visha Vidhema. He is the giver of spiritual and physical strength. He is meditated upon by the whole universe. He is the Lord of immortality and death. May we offer our oblations to that blissful being. Om Yaha Pranato Nimishato Mahitvi Kayidraja Jagato Babhuva Ya Ishe Asya Dvipadascha Tushpadaha Kasmai Devaya Visha Vidhema. He, by His majesty, is the supreme among all animate and inanimate things of the world, and He is the sole ruler of all creatures, consisting of all bipeds and quadrupeds. May we offer our oblations to that blissful being. Om Yena Dhyaurugra Prithvi Chadrida Yena Swahastabhitam Yena Nakaha Yo Antaryukshe Rajaso Vimana Kasmai Devaya Visha Vidhema. He who makes the sky blazing and the earth steady, who supports the realm of light and heaven, who is the measurer of the regions in the mid-space, may we offer our oblations to that blissful being. Om Prajapatena Tvadetanyanyo Vishwajatani Parita Babhuva Yatkamaste Juhumastanno Astu Vayam Syama Patayorainam. O Lord of all subjects, none except You pervade all these objects. May all our desires, for which we come to Your shelter, be fulfilled so that we might become wealthy and prosperous. Om Sano Bandhur Janita Savidhata Dhamani Veda Bhuvanani Vishwa Yatra Deva Amritamana Shana Stratiye
धामन्नध्यैरयन्त. He is our friend, creator and sustainer. He knows all places and regions. In him, abode of all happiness, roam the enlightened persons enjoying emancipation. Om Agninaya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmajuhurana Meno Bhuishtam Te Nama Uktim Vidhema. O self-effulgent being, lead us through the path of virtue to prosperity. As you know all the paths of actions, please keep us away from evil deeds. We bow to you with reverence again and again. आप सभी टीचर्स के और हमारे जो बाकी जो फैमिलीज हैं, आप सबका स्वागत है. बड़े भक्ति भाव से यज्ञ में सम्मिलित होइए. अब हम आचमन करेंगे. Now we are going to sip the water. There is water in front of you. Take water in your right palm. With स्वाहा you have to sip it. जब हम स्वाहा बोलेंगे मंत्र के साथ, आप उसको पिएंगे, उसको आचमन कहते हैं. ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा. और एक बार. ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा. ओम. और एक बार. ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा. 3 बार आचमन करने के बाद अपने दाएं हाथ को साफ कर लीजिए. जस्ट वॉश योर राइट हैंड. नाउ टेक वाटर इन योर लेफ्ट पाम. अब आप अपने बाएं हाथ में पानी ले लीजिए, अंग स्पर्श करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टच डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. जस्ट रिमेंबर, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट. यू कैन फॉलो अस. ओ don't talk each other, you can follow us. Om Vangmasyastu, mouth. Om Nasor me Pranoastu, nose, both of nose. Om Akshnor me Chakyurastu, eyes. Om Karnayor me Shrotramastu, ears. Om Bahor me Balamastu, arms. Om Urvorma Ojavastu, legs. ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सहसंतु. ऑल ओवर योर बॉडी. कोई भी पूजा आराधना, ईश्वर की भक्ति स्तुति करने से पहले हम आचमन और अंग स्पर्श करते हैं. ये हमारा ट्रेडिशन है, वैदिक परंपरा है. अपने अंदर और बाहर शुद्धि का भाव पैदा करने के लिए, जस्ट टू कल्टिवेट द फीलिंग ऑफ प्योरिटी इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, वी डू दिस रिचुअल्स. Because with this feeling of purity, we can pray more effectively to God. अब अग्नि प्रज्वलनम. आपके पास स्पून रखे होंगे, उसमें कपूर होगा. उस कपूर में आग लगाएंगे. ओम भूर्भुवः स्वाहा. आग लगाने के, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इसको हवन कुंड में डाल दीजिए. ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना द्यायादधे. डाल दीजिए हवन कुंड में. और थोड़ी सी घी उस पर डाल दीजिए, जिससे अग्नि ठीक से प्रज्वलित हो जाए. ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टाः पूर्ते संसृजेथा मायं च अस्मिन् छदस्ते द्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत. The meaning of this mantra is, O divine fire, wake up, keep the host of yajna ever alert and watchful. Let him be engaged in yajna and benevolent deeds. May in this place of yajna and in higher realm, all the enlightened ones and the host of yajna occupy good positions. अब आपके पास समिधाएं रखी हैं. समिधा मतलब
लकड़ी वुड स्टिक, जिसको यज्ञ में जिस लकड़ी को प्रयोग करते हैं उसे समिधा बोलते हैं। हर मंत्र के साथ, स्वाहा के साथ एक समिधा आप अग्नि में डालेंगे। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया इदमग्नये जातवेदसे धन्नमम। ओम समिधाग्निं दोवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्यजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमम। Now the third one. ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहचोचाय विष्ठय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे धन्नमम। अब घी की आहुति। नाउ द ओब्लेशन ऑफ घी। हर स्वाहा के साथ आप घी, जिनके पास स्पून है वो घी की आहुति देंगे। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमम। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमम। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमम। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय आस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमम। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमम। The meaning of this mantra is, O all-pervading one, I offer myself to you as I offer this fuel to the fire. May you enlighten me in greater and greater measure as this fire grows with the application of fuel. May you enable me by the help of true knowledge to attain physical and spiritual well-being. अब जल प्रसिंचनम, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। पहले ईस्ट डायरेक्शन में पानी छिड़केंगे हवन कुंड के ईस्ट में। जो ईस्ट में बैठे हैं वो थोड़ा पानी छिड़केंगे। पानी रखा होगा आपके पास। ओम अदिते नुमन्य स्व, इस तरफ को। हाँ, ईस्ट में डाल दिया। अब वेस्ट में ओम अनुमते नुमन्यस्व। अब नॉर्थ ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब साउथ से चारों तरफ ओम देव सवितः प्रसुभ यज्ञं प्रसुभ यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनः तु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु।
नाउ द ओब्लेशन ऑफ घी। अब घी क्या होती, जैसे आप दे रहे थे वैसे घी क्या होती। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमम। आपके पास अगर कोई पका हुआ अनाज हो, कुक्ड राइस, हलवा, एनीथिंग, स्विष्टिकृत आहुति के लिए, वो थोड़ी थोड़ी आप अपने ले लीजिए। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लेंगे, क्योंकि सभी लोग डालेंगे तो हवन कुंड में बुझ जाएगा। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। तब तक मंत्र पढ़ें। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचं यद्वान्यूनमिह करम् अग्निष्टस्विष्टकृतविद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहूताहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धयास्। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्नमम। घी की आहुति फुल ऑफ स्पून, पूरे घी स्पून भर के डालिए। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। अब इसके बाद जिनके पास सामग्री है वो सामग्री की आहुति देंगे। जो घी की आहुति देते हैं वो घी की आहुति देते रहेंगे। जो घी की आहुति देते हैं वो कंटिन्यू रखेंगे, बाकी लोग सामग्री की आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसीन्द्रवत्या जोषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जोषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम
ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। आज जो हमारे अलग अलग यजमान हैं, अपने दनायक फैमिली, अपने बच्चा बेटा यूटी ह्यूस्टन जा रहा है यूटी, और हमारे जो डीएवी मॉन्टेसरी स्कूल की टीचर्स हैं, अपने स्कूल का बिगिनिंग है, और हमारे जो नांगिया फैमिली है वो अपने डॉक्टर भूपेंद्र शरीन जी की डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो पहले जो विद्या से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ विशेष आहुतियाँ। ओम तनुपाग्नेसि तन्वं में पाहि और मायुर्दयाग्नेसि आयुर् में देहि। ओम वर्चोदाग्नेसि वर्चो में देहि। ओम अग्नेयन्मे तन्माओ तन्माप्रण। ओम मेधां में देव सविता दधातु स्वाहा। You God are protector of the body, protect in every way. O God, you are bestower of long life, bestow on me long life. O Lord, you are bestower of intellectual brilliance, bestow on me intellectual brilliance. O God, whatever is wanting in my body, make up that for me. ओम मेधां मे देव सविता आदधातु। ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु। ओम मेधां मे अश्विनो देवमाधत्तां पुष्करस्रजौ स्वाहा। O God, you are the repository of all true knowledge, endow me with that knowledge. O Lord, you are the source of learning, you may shower knowledge on me. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaveturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat Swaha. Om Agnimile Purohitam Yajnasya Deva Mrityujam Otaram Ratnadhatamam Swaha. Now the second occasion. Om Mrityurishe Dvipadam Mrityurishe Chatushpadam Tasmat Tvam Mrityur Gopaderudbhirami Samabhibhe Swaha. Death has its hold over biped and it also over quadrupeds. I deliver you from the death which holds all the creatures into its clutches, and you do not be afraid of it. Om Vayuranilam Amritamatedam Bhasmantam Shariram. Om Krato Smara Klive Smara Kritam Smara Swaha. O active soul, at the time of death, remember Om. Remember your vitality and your eternity. Remember your deeds. Know that soul is immortal, immaterial, but the body is finally reduced to ashes. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mokshiya Mamritat Swaha. आज पूर्णिमा है और आज तो बहुत सारे त्योहार है। आज श्रावणी पूर्णिमा है, आज रक्षाबंधन है, आज बलराम पूर्णिमा है, आज संस्कृत दिवस है। तो कुछ पूर्णिमा की कुछ आहुतियाँ देते हैं। वो केवल घी की आहुति, सामग्री नहीं डालेंगे, ओनली घी, ओनली द ओब्लेशन ऑफ घी, नो सामग्री। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। सभी मिलके गायत्री मंत्र बोलेंगे और घी सामग्री दोनों की आहुतियां देते रहेंगे। सभी बोलेंगे ओम भूर्भुवः वेतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलते रहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे कपट को मन कर दीजिए। चाहे सत्य को धारण करे, हर्ष में हो माग्न सारे, शोक सागर से तर। अश्वमेधादिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, यश से नर नारी। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी, तेरिये वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। निधन मम का सार, भक्त प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। यज्ञ प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, प्रभु आध्यात्मिक बल दीजिए। बोलिए। ओम यूयं जीवत शरदः शतं वर्धमानः, यूयं आयुष्मन्तः वर्चस्विनः तेजस्विनः
श्रीमन्तः भूयासः। आप सबने कहा, may you live for 100 years, always progressing. May you possess long life, effulgence, splendor, fame, wealth and prosperity. May welfare come to you. May God bless you. इन दोनों का नाम है, ये प्रीति जी की बिटिया जो है माही तोमर एंड काव्या तोमर, थोड़ा दब के गा रही हैं, डर रही हैं क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने जब बच्चों को गाना पड़ता थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। प्लीज़ एनकरेज देम कि गाओ क्लैपिंग करके, जब गाएं स्पेशली व्हेन दे आर सिंगिंग, क्लैप विद द बीट, दे विल एंजॉय इट मोर। आपको अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाट दे नीड।
बहुत ही सुंदर भजन है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, इन बच्चों के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में पैदा हुए पले बड़े बच्चे हैं और बहुत कोशिश करते हैं अपनी हिंदी का शुद्ध उच्चारण करने की, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो, भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो,
I have it. You have it? मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर। सुबह का सूरज डूबा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, मेरा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। मेरा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खरा है दयालु भला, पर तू जो खरा है दयालु भला, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले कि वो भावना। बढ़ चले प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ओम। सुधीजनों, देवियों, आज बड़ा सचमुच शुभ दिन है। आज श्रावणी पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है, और भी बहुत कुछ हैं।
उन सब के ऊपर चर्चा करने से पहले थोड़ी ईश्वर की भक्ति करते हैं। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्, त्वमेकं जगत्कर्तृपात्रप्रहर्तृ, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। भयानां भयं भीषणं भीषणानां, गति प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चये पदानां नियन्त्रित्वमेकं, परेषां परं रक्षणं रक्षणानां। वयं त्वां स्मरामो, वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं, भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः, भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। सुधीजनों, देवियों, आज श्रावणी पूर्णिमा है। पूर्णिमा जो श्रावण मास में होती है उसे श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। श्रावण मास का मतलब जो रेनी सीजन होता है, जो बारिश का मौसम होता है, उसमें एक महीने का नाम है श्रावण। ये श्रावण का मतलब होता है जहां श्रवण ज्यादा होता है। श्रवण मतलब सुनना। अब देख रहे हैं बारिश के मौसम है, और भारत में जब बारिश के मौसम में 2-3 महीने तक झमाझम बारिश होती रहती है। वो यहाँ की तरह नहीं कि साल भर थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी ज्यादा फिर धूप फिर धूप। जब बारिश होती है तो बारिश होती है। और बारिश के मौसम में 3 चीजें हमें सुनने को मिलती थी। प्राचीन काल में ऋग्वेद में इसके लिए बड़ा एक सुंदर वर्णन आता है कि संवत्सरं शशयन ब्राह्मण व्रतचारिणः, वाचं पर्जन्य जिन्वतां प्रमंडुकावादिषु। कि साल भर सोए हुए जो मेंढक हैं वो बारिश के मौसम में टर्र टर्र करते रहते हैं। साल भर सोए हुए जो बादल हैं वो बारिश के मौसम में मंडराते हैं और झमाझम बारिश करते रहते हैं, झमझम आवाज करते हैं। साल भर अपनी पढ़ाई लिखाई प्रचार में व्यस्त जो विद्वान ब्राह्मण लोग हैं वो बारिश के मौसम में आना जाना बंद कर देते हैं और अपने जहां भी रह करके वेद पाठ वेद मंत्रों से ओम के उच्चारण से गूंजाते रहते हैं। इसीलिए श्रावण के महीने को श्रावण कहते हैं, क्योंकि वहां सुनने को मिलता है बारिश की आवाज, मेंढक के टरटराहट और विद्वानों के वेद पाठियों के वेद मंत्र। इसीलिए इसे श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ प्राचीन काल में आज भी बहुत सारे जो खास करके जैन धर्म में भी हमारे यहाँ भी जो श्रमण और सन्यासी लोग हैं वो चातुर्मास्य करते हैं। चातुर्मास्य का मतलब 4 महीने जो बारिश का मौसम होता है वो रहने दीजिए अभी, वो 4 महीने तक, क्योंकि पहले जमाने में इतने सारे रास्ते नहीं होते थे, ब्रिज पोल नहीं होते थे, तो जो घूम घूम करके प्रचार करते थे साधु सन्यासी वानप्रस्थी विद्वान ब्राह्मण लोग, वो जा नहीं पाते थे, जंगल बहुत होता था, तो उनको वो 3-4 महीने एक जगह रुकना पड़ता था। और रुक कर क्या करेंगे,
तो रिफ्रेश करते थे, जो उन्होंने पढ़ा है, जो कुछ किया है उसको दोबारा गुनगुनाते थे, या आसपास के जो लोग हैं उनको ज्ञान देते थे। आज वो विद्या की परंपरा तो हिंदुओं में खत्म हो गई, स्वाध्याय की परंपरा। आज तो हम क्या है जानने के लिए हम अंग्रेजों से सीखते हैं, हम वेबसाइट से ढूंढ ढूंढ कर पता लगाते हैं कि मैं हिंदू हूं तो मैं क्या हूं, मेरा धर्म क्या है, मेरा ग्रंथ क्या है, मेरी देवता क्या है। और वो वेबसाइट पे लिखने वाले ज्यादातर क्रिश्चियन होते, ईसाई होते, वेस्टर्न विद्वान होते हैं, हम उनसे सीखते हैं क्योंकि स्वाध्याय खत्म हो गया। तो वो जो 4 महीने होता था स्वाध्याय करने के लिए होता था, सेल्फ स्टडी, अपने आप पढ़ने के लिए। जो पढ़े हुए हैं उसको रिफ्रेश करो और नई कुछ जानो। फिर साल भर वो जो 4 महीने आप पढ़ते हैं वो 8 महीने तक आप उसको प्रचार करेंगे। और बड़े मजेदार बात देखेंगे, आज जितने भी प्रचारक आप मिलेंगे, सो कल्ड रिलीजियस लीडर या धर्म प्रचारक, वो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है मतलब उनको खुद के धर्म के बारे में बहुत कम पता, जितना वो बोलते हैं उतने भी सुनी सुनाई बातों पर बोलते हैं। आप किसी से बात करना शुरू कर दो, वो 4 घंटे आपको लेक्चर झाड़ेगा धर्म के बारे में, कौन सा ग्रंथ पढ़ा है, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा है। तो आप प्रचारक ज्यादा हो गए, पढ़ने वाले कम हो गए। पहले पढ़ते लिखते थे, तब फिर निकलते थे कुछ बोलने के लिए। इसीलिए आज प्रचार करने वालों को कोई कीमत नहीं होता है, लोग मुंह झाड़ के भाग जाते हैं। श्रावणी पूर्णिमा स्वाध्याय का पर्व होता है, श्रावण मास कि इस दिन आज भी भारत के बहुत सारे जगह पर, खास करके साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, नॉर्थ इंडिया में तो स्वाध्याय की परंपरा थोड़ी ज्यादा ढीली है, पर काशी में, उत्तर प्रदेश में, मिथिला में, बिहार के मिथिला में आपको आज भी वो परंपरा मिलेगी। श्रावणी पूर्णिमा के दिन लोग अपने जनेऊ बदलते, नए जनेऊ धारण करते। ये जनेऊ का क्या कंसेप्ट है श्रावण पूर्णिमा के साथ, पहले हमने चर्चा की है। जो उपनयन संस्कार होता था, जो जनेऊ संस्कार, वो एक तरह के आजकल के मॉडर्न भाषा में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में अगर देखें, स्कूल में एडमिशन होना होता है। जैसे आजकल बच्चे को स्कूल में एडमिशन करते हैं, और जब वो स्कूल में एडमिट हो जाता है तो उसको एक आई कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। वो बैग पैक लेकर स्कूल जाता है, उसमें किताबें होते हैं, उसकी यूनिफॉर्म होता है। वो जो एडमिशन प्रोसेस है उसी को उपनयन कहते हैं। जनेऊ संस्कार को संस्कृत में उपनयन कहते हैं। उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना। किसके पास? टीचर के पास। पहले स्कूल तो, सरकारी स्कूल तो हुआ नहीं करते थे। जो टीचर होता था, गुरु होता था, वो अपने घर में गुरुकुल खोलता था। और वो बच्चा ऐसा नहीं कि आजकल की तरह स्कूल सुबह 8 बजे जाएगा और शाम को 5 बजे गाड़ी छोड़ जाएगी, आप ले आएंगे। 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में जब भी माँ बाप बच्चे को ले जाएंगे गुरुकुल के आश्रम में, गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में उसका जनेऊ संस्कार होता था, मतलब एडमिशन होता था। और उसका आइडेंटिटी कार्ड क्या होता था? जनेऊ। अगर किसी के गले में जनेऊ है वो ब्राह्मण है। आजकल का ब्राह्मण नहीं जो घर में मांस खा करके मंदिर में पूजा करता है और हिंदू धर्म की रक्षा की बात करता है, जिसको वेद का नाम भी पता नहीं, चारों वेदों का नाम गिना दो, पर शर्मा जरूर लिखता है। ब्राह्मण का मतलब जो शास्त्रों को जानता है, ज्ञान को जानता है। आजकल की भाषा में अगर ब्राह्मण ढूंढेंगे, जो प्रोफेसर है, जो एकेडमिशियन है, जो साइंटिस्ट है, जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग, जो जिनका प्रोफेशन ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिनका जॉब भी ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो जीवन का व्रत जिनका ज्ञान लेना और देने में जुड़ा हुआ है, उनको आप ब्राह्मण कैटेगरी में रखेंगे। तो जनेऊ उसका पहचान था कि ये पढ़ा लिखा है, अगर बड़े उम्र में है, अगर छोटे उम्र में है कि तो ये विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ब्रह्मचारी है। प्राचीन भाषा में ब्रह्मचारी कहते थे स्टूडेंट्स को। वो उपनयन संस्कार करने के बाद वो विद्या का अधिकारी होता था। अब वो पढ़ सकता है। तो मतलब जनेऊ का संबंध पढ़ने लिखने से था। जब हमारे देशों में देश में पंडितों ने सोचा, तथाकथित ब्राह्मणों ने सोचा कि नहीं,
हर जगह होता है, ये हमारे यहाँ ब्राह्मण की बात नहीं, दुनिया में हर जगह इन्होंने कालों को कितने दिन तक गुलाम रखा। जैसे ही व्यक्ति, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो वो फिर मोनोपोली करना चाहते हैं। उनको समाज में कुछ ऐसे लोग चाहिए जो नौकरी चाकरी करें, जो उनकी नौकरी करें, जो गुलामी करें। तो हमारे यहाँ भी ये कुछ लोगों को ये सूझा और उन्होंने शुरू किया कि जो स्त्री जाति है, महिलाएं हैं, और जिसको शूद्र वर्ण कहते हैं, इन सबको गुलाम बनाना है। तो पहला काम क्या है कि ये अनपढ़ बनेंगे तभी तो आपके गुलाम बनेंगे ना, पढ़ा लिखा आदमी थोड़े ही गुलाम बनता है। पहले जमाने में किसी को अनपढ़ बनाने का पहला शर्त था उसकी जनेऊ छीन लो। इसीलिए शूद्रों का और स्त्रियों का जनेऊ करना बंद कर दिया, मतलब स्कूल में जाना, गुरुकुल में प्रवेश करना मध्य युग में बंद कर दिया। इतना महत्वपूर्ण था वो जनेऊ जो धागा था, क्योंकि वो बिल्कुल समाज को बदल डालता था। और हजारों सालों से जो मिडिल एज में शुरू हुआ जो समस्या, वो हजारों सालों तक हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वर्ग को, पूरा का पूरा महिला समाज और शूद्र समाज को उसने निरक्षर, अनपढ़ बना दिया। क्योंकि एक घर के गुलाम चाहिए, एक बाहर का गुलाम चाहिए, एक बैकयार्ड में चाहिए, एक किचन में चाहिए। वो तो अलग बात है, समाज बदला, समाज पढ़ा लिखा हुआ, सोच बदला, धर्मशास्त्रों का महत्व घटा, पंडितों का, ब्राह्मणों का महत्व घटा, तो समाज बदला। अब हर कोई पढ़ लिख जाता है, पर मानसिकता वही है। तो कहने का उद्देश्य था वो जनेऊ का पढ़ने लिखने से संबंध था। श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो जनेऊ बदलते थे, जनेऊ पहनते थे, इसी भावना के साथ कि पढ़ना लिखना अब शुरू करेंगे। तो श्रावणी पूर्णिमा स्वाध्याय का पर्व था। और बड़े मजेदार चीज है, हम लोग तो पढ़ते लिखते इसीलिए हैं कि कमाना है। माँ बाप भी सिर्फ उतने ही पढ़ने के लिए हमें एनकरेज करते हैं जितने में तुम कमा सकते हो। मतलब बेटे मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, इसीलिए नहीं पढ़ना कि तुम्हें मैथमेटिशियन बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें हिस्टोरियन बनना है। पढ़ना है इसलिए कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी बड़ी नौकरी मिलेगी और उतना कमाओगे। कमाने के बाद पढ़ने लिखने की फालतू के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बीवी को घुमाने ले जाओ या पति के साथ कहीं घूमने जाओ, बच्चों के टाइम बुक लेकर बैठते हो कीड़े, किताबी कीड़ों की तरह। अब घर में डांट भी पड़ती है, कोई किताब पढ़ता है। अगर पति ज्यादा किताब पढ़ता है या पत्नी पढ़ती है तो डांट भी पड़ता है। इतना पढ़ते लिखते हो, घर गृहस्थी सब भूल गया, लगता है तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं है, सब मेरी चिंता है, किताब लेकर बैठ जाते हो। बेचारे आजकल स्वाध्याय करने वालों के घर में भी मुसीबत है। उसका परिणाम क्या हुआ? हम अच्छे प्रोफेशनल बने, बाकी कुछ नहीं जानते। बाकी तो वो शुक्र करो वो इंटरनेट वालों का, जो बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा अधकचरा ज्ञान मिल जाता है, उसमें काम चला देते हैं। जब ये इंटरनेट नहीं था तो हम कितने मूर्ख थे। सिवाय मैं अगर एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैं एक टीचर हूं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स के बारे में पता क्योंकि रोज अखबार पढ़ता हूं, बाकी कुछ नहीं पता। बच्चों को पालना कैसे ये भी नहीं पता, मैं क्या हूं वो भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। क्यों? हमारे देश में स्वाध्याय, हमारी कम्युनिटी में स्वाध्याय के प्रति रुचि ही खत्म हो गया। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने एक त्योहार बनाया स्वाध्याय पर्व। और बड़े मजेदार बात देखिए, वो श्रावणी पूर्णिमा जो पढ़ने लिखने को रिवाइज करने के लिए था, उसको तो हम हटा दिया, उसकी जगह रक्षाबंधन ले आए। भाई बहन के रिश्ता बांधने, उसमें भी पैसा ढूंढते हैं। राखी बांधेंगे तो पैसा मिलेगा। वो बचाना किसी को नहीं है, किसी को नहीं चाहिए बचाना, बस उससे बदले कुछ मिलेगा। और हिंदू अब धर्म लीडर चिल्लाएंगे, देखो इससे हमारा धर्म प्रोटेक्टेड होता है, सिक्योर होता है। स्वाध्याय बड़ी जरूरी है। जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश पढ़ा लिखा नहीं है, मैं प्रोफेशनली एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कुछ जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो समाज, वो व्यक्ति, वो सोसाइटी, वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, वो कभी भी डेवलप्ड नहीं हो सकता।
ऐसे लोग, ऐसा समाज, ऐसा देश ज्यादा अंधविश्वासी होता है। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर तक भी दुनिया भर के सुपरस्टिशन पाले रहते हैं। लोग सवाल पूछते हैं, अगर ये सुपरस्टिशन है तो साइंटिस्ट होकर कैसे करता है? वो साइंटिस्ट है, प्रोफेशनली एजुकेटेड है, वो अपने प्रोफेशन को क्या है वो जानता है। पर प्रोफेशन तो सिर्फ ज्ञान नहीं है ना, जीने के लिए और भी हजारों तरह के ज्ञान है। उस मामले में जीरो है, वो उतना ही जानता है जितना जिस बाबा का चेला बना है उस बाबा ने जितना बताया। वो आलू को प्याज बताया तो प्याज ही मानता है आज भी, सूरज को चांद बताया तो आज भी चांद मानता है, क्योंकि इसके बाबा ने उसको बोला, उसके गुरु ने उसको बोला कि ये सूरज नहीं चांद है। वहां साइंस काम नहीं करता, वहां इंजीनियरिंग को इंप्लीमेंट नहीं करता है, क्योंकि खुद का स्वाध्याय नहीं रहा। आप देखेंगे ऐतरेय उपनिषद में ऋषि बोलता है, जब कन्वोकेशन होता है बच्चों का, मतलब जब बच्चे अपने आजकल तो ग्रेजुएशन हम शुरू से भी कर लेते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी का डिग्री हासिल कर लेता है, प्राचीन काल में उसको समावर्तन संस्कार कहते थे, जो 16 संस्कार में से एक संस्कार है। आजकल आप उसको ग्रेजुएशन कहे या कन्वोकेशन कहे, जब मास्टर डिग्री लेता है, करने के बाद गुरु शिष्य को कुछ समावर्तन के उपदेश देता था, एडवाइस देता था। बहुत पॉपुलर है, सब जानते हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमद, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो उसमें एक लाइन और भी है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। यहां से घर जा रहे हो, 12 साल, 15 साल, 18 साल, जो भी स्कूल तुमने यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई की, अब मास्टर बन करके वापस जा रहे हो। घर में अपना जो भी रोजगार करोगे, नौकरी करोगे, शादी करोगे, बच्चे होंगे, परिवार पालोगे, जो कुछ बनना है बनोगे, पर स्वाध्याय से कभी, स्वाध्याय को कभी इग्नोर नहीं करना, स्वाध्याय के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। पढ़ते लिखते रहना, पढ़ते लिखते रहना, कुछ भी हो पढ़ते लिखते रहना। श्रावणी पूर्णिमा उसी चीज को हमें याद दिलाता है, पढ़ते लिखते रहो, अपने बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, संसार के बारे में, दुनिया के बारे में। जहां जो ज्ञान मिलता है उसमें कंप्रोमाइज मत करो, नहीं तो फिर हम अच्छा पैसा तो कमा लेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन के कारण, बहुत कुछ बना देंगे, पर हम रिलेशनशिप नहीं निभा पाते हैं, सुख में दुख में आपको हैंडल करना नहीं जान पाते हैं। हम जिंदगी के हर संकट में, अच्छे में बुरे में अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन चीजों का ज्ञान हमें नहीं है। श्रावणी पर्व का पहला संदेश होता है कि स्वाध्याय करो, ये श्रावणी पर्व है। आज और एक बड़ा त्योहार है, और ये त्योहार आजकल ज्यादा पॉपुलर हो गया। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी बड़े बड़े त्योहार हैं, वो उनका जो एंशिएंट फॉर्म था, जो प्राचीन रूप था, वो धीरे धीरे छुपता गया, उसके जगह मॉडर्न फॉर्म लेते गए, आधुनिक चीजें लेते गए हर त्योहार में। तो श्रावणी पूर्णिमा भी धीरे धीरे रक्षाबंधन में कन्वर्ट होता गया। अब ज्यादातर लोग श्रावणी पूर्णिमा का नाम भी नहीं सुनते, पर आज भी जो ट्रेडिशनल, जो अपनी संस्कृति को समझते हैं, वो दक्षिण से लेकर कश्मीर तक आप निभाते हैं, पर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं समझते। दूसरा जो सबसे बड़ा आज जो महत्वपूर्ण त्योहार है वो है रक्षाबंधन। आजकल तो बहन भाई से राखी बांधती है, पर ये रक्षाबंधन का भी एक बड़ा सुंदर हिस्ट्री है, ये भी समझने लायक है। रक्षाबंधन था, ये भी एक प्राचीन परंपरा है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन ये नहीं होता था, वो बाद में जुड़ा, पर रक्षाबंधन की ट्रेडिशन हमारे यहाँ बहुत पुराना था। पुरोहित जो पहले जो राजा हुआ करते थे, तो राजा के सभा में बहुत सारे मंत्री होते थे, और चाणक्य अर्थशास्त्र में, महाभारत में 18 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स तो हुआ करते थे। तो उसमें एक मिनिस्टर हुआ करता था पुरोहित। पुरोहित जिसको आज भी आप पुरोहित कहते हैं, जो घर में हवन पूजा पाठ करते हैं, वो पुरोहित, उसको इसीलिए बोला जाता था पुरोहित। पूरा मतलब सामने, हित मतलब कल्याण, जिसके सामने दूसरों का कल्याण ही प्राइमरी होता था, अपने बारे में जो नहीं सोचता था। राजा के जो मंत्री होते थे, बाकी जो 17 टाइप के मंत्री होते थे, वो पेड होते थे, मतलब पैसा लेते थे। पुरोहित पैसा नहीं लेता था,
वो स्वाभाविक सेवा देता था, वो जो काम करता था उसके बदले वो दक्षिणा लेता था। और दक्षिणा एक तरह के फी होता है, और सैलरी एक तरह के आपको बांधता है, आपको मजबूरी बनाता है। आपको मालिक के सामने वही एक्सेप्ट करना है जो मालिक को मंजूर है। वो कहे दिन रात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या नौकरी छोड़नी पड़ेगी। देयर इज नो अदर चॉइस, आपके पास कोई अदर वे नहीं है, या तो नौकरी छोड़ो या अगर मालिक बोलता है दिन रात है तो रात मानो। इसीलिए जो ज्ञानी और विद्वान लोग, उनके लिए हमारे यहाँ सैलरी की व्यवस्था प्राचीन काल में नहीं होता था। इसीलिए ब्राह्मण मतलब जो ज्ञानी, मैं आजकल के शर्मा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। जो ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी लोग दक्षिणा से उनका संबंध होता था, एक तरह का फी है। वो आपको गुस्सा, उनको पसंद नहीं आया वो चले जाएंगे, वो आपके घर में करेंगे नहीं ना, आपसे लेने वाले हैं। कोई नौकरी नहीं है कि जिंदगी भर के बंधे हुए हैं। राजा को पुरोहित राखी बांधता था, आजकल की तरह डिजाइन वाला नहीं है, धागा बांधता था इस प्रॉमिस के साथ कि आप देश की भलाई की, अपने राज्य की भलाई की चिंता करेंगे। बाकी मंत्री कभी कभी कंप्रोमाइज करते थे, क्योंकि उन दिनों कोई गवर्नमेंट नाम का सिस्टम तो इतना नहीं था। राजा को गुस्सा आया, सरकार देगा, नौकरी से हटा देगा। तो देश में दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ा हुआ है, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। मंत्री कहेंगे सब ठीक है राज्य में, महाराज आपके राज्य में गड़बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती है, अब महान है। पर पुरोहित उसका नाम इसीलिए है कि वो किसी के डर, किसी के क्रोध के लिए, किसी से कुछ पाने के चक्कर में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। वो बोलता था, और वो राखी बांध, वो जो रक्षा का धागा बांधता था, राज्य की सुरक्षा की प्रतिश्रुति लेने के लिए पुरोहित राजा का संबंध था। इसी तरह धीरे धीरे ये संबंध बढ़ा, राजा प्रजा से लेकर के घर में पति पत्नी आप एक दूसरे को राखी बांधते थे कि एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, बच्चे माँ बाप की रक्षा बांधते थे। जहां भी रक्षा की प्रतिश्रुति लेनी होती थी, सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए होता था, बा उसे प्रॉमिस करना होता था, तो वो एक परंपरा हमारे यहाँ बनी। पर धीरे धीरे वो भाई बहन के पर्व के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और जैसे ही कोई त्योहार चल पड़ते, हमारे यहाँ बने बनाए विद्वान भी होते हैं, फटाफट नरेशंस बनाने के लिए, कहानियाँ बनाने के लिए। फिर कहानियाँ शुरू हो गई, अकबर के हाथ में किसने बांधी, हुमायूं के हाथ में अमुक ने बांधी, अमुक में हाथ में अमुक बांधी। वो किराए के पंडित होते हैं, वो नरेशंस बना देते हैं और संसार चल पड़ता है, कहानियाँ चल पड़ती है। आगे की ओर चलते हैं रक्षाबंधन के बाद। और रक्षाबंधन क्या था? पहला श्रावणी पूर्णिमा आज जो शास्त्रों की रक्षा के लिए, ज्ञान की रक्षा का पर्व था, स्वाध्याय पर्व। दूसरा त्योहार क्या है? रक्षाबंधन है, देश की समाज की रक्षा के लिए। ये क्षत्रिय का पर्व है, ध्यान रखिए। रक्षाबंधन जो है, मतलब जो राजा है, जो पुलिस है, जो आर्मी है, जिनका काम है समाज को रक्षा करना, ये रक्षाबंधन उनका त्योहार था। और श्रावणी पूर्णिमा किसका त्योहार है? ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का, टीचरों का, जो ज्ञान से संबंधित रखते हैं। आज हमारे डीएवी मॉन्टेसरी स्कूल के टीचर्स आए, वो टीचर्स का पर्व था श्रावणी पूर्णिमा। आज और एक पूर्णिमा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, आज और भी एक बहुत बड़ा त्योहार है, भारत के बहुत सारे भागों में ये मनाया जाता है। इसको बलराम पूर्णिमा या गोवर्धन पूजा कहते हैं। आजकल तो गोवर्धन पूजा के नाम पर पहाड़ बनाकर 56 तरह के खाना बना कर रख देते हैं। गो मतलब गाय, जो कैटल्स होते हैं, गाय बैल वगैरह, उनको बढ़ाने का त्योहार था। बलराम पूर्णिमा, बलराम का जन्मदिन है। 8 दिन के बाद आप जन्माष्टमी मनाएंगे, श्री कृष्ण की जयंती मनाने जा रहे हैं। बलराम गायों का सेवक था, इसीलिए इस दिन को हम गो पूर्णिमा के रूप में, गाय की सेवा के रूप में, आज के दिन बहुत सारे भारत में भी, आज भी बहुत सारे राज्यों में आज गायों को, जो बैल घर होते हैं, उनको नहा धुला करके हरी हरी घासें खिलाते हैं, उनको टीका करते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना आज खिलाते हैं। धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर आज भी भारत में बहुत सारे राज्यों में त्योहार मनाया जाता है। और गाय किसका विषय है? वैश्यों का, जो व्यापारी वर्ग है, जो धन कमाने के वर्ग है। आज तीनों वर्णों का पर्व है। एक ज्ञानी विद्वानों का स्वाध्याय पर्व है, क्षत्रियों का रक्षा पर्व है, वैश्यों का गो पर्व है। आज एक चौथा सेलिब्रेशन है, आज संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। 40-50 बहुत सालों से भारत सरकार इसको घोषणा कर रखा है। संस्कृत भाषा
बोले लैंग्वेज ऑफ एनलाइटनमेंट। अगर आप सचमुच आपको कोई गहरा ज्ञान चाहिए खुद के बारे में, वो दुनिया का कोई भी विषय हो, अगर आपको ये समझना है कि उसका इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है, वो कितना भी मॉडर्न साइंस हो या एंशिएंट नॉलेज हो, उसका इंडियन एस्पेक्ट समझना हो तो आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। आप राजनीति, भारतीय राजनीति समझना चाहते हैं, भारतीय इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन थॉट्स ऑफ इकोनॉमिक्स जानना चाहते हैं, आप हमारे वार साइंस जानना चाहते हैं, आपको केवल लोगों को तो संस्कृत के साथ धर्म को जोड़ दिया, पर संसार में कोई भी विद्या जिसका भारतीय पक्ष समझना हो, इंडियन एस्पेक्ट समझना हो, वो सारे संस्कृत में है। और धीरे धीरे संस्कृत भाषा को सम्मान देने वाले इंडियन कम होते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि वेस्टर्न लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक बार एक प्रेसिडेंट थे भारत में, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, वो बड़े संस्कृत के विद्वान थे, तो बार बार सभा में कहा करते थे कि चिंता नहीं करने की बात है, भारत में अगर कोई संस्कृत नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ो। अब क्या है, संस्कृत पढ़ने वाले लोग तो रहेंगे। अब यही होगा कि आज इंडियन लोग इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी, मेडिकल साइंस में, अलग अलग सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने के लिए वेस्ट जाते हैं, यूरोप और अमेरिका जाते हैं। अगले 50 साल के बाद संस्कृत में एक्सपर्ट बनने के लिए जाएंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे। और सचमुच आज यही हो रहा है। वो बड़े बड़े संस्कृतिस्ट भी आज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में ही मिलते हैं, भारत में नहीं मिलते हैं। ये बड़ी विडंबना है, देखिएगा। तो आज वो संस्कृत दिवस है। ये 4 अलग अलग त्योहारों का आज बड़ा सम्मिश्रण है, इसलिए मैंने कहा आज बड़ा शुभ दिन है। आज बहुत ही यूनिक डे है। इतने सारे त्योहारों का दिन है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं। और हमारे यहाँ और एक खास दिन है कि हमारे जो आज अपने आर्य समाज का जो मॉन्टेसरी स्कूल है, उसके टीचर्स आज वहाँ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ है, तो उनके बारे में भी 2-4 बातें कहने को मन करता है। क्योंकि जो परिश्रम, जो त्याग वो स्कूल में करते हैं, अगर आपको देखना है, आपको जानना है, जरूर कभी मॉन्टेसरी स्कूल में जब क्लास चलता है तो जरूर जाइए। आधा 1 घंटा 2 घंटा बिताइए। जो पेरेंट्स हैं वो जानते होंगे, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये छोटे छोटे ननिहाल बच्चों को, उनको जिनको माँ बाप खुद परेशान हो जाते हैं, छुट्टियों में पकड़ा देते हैं, टैबलेट खेलो, टाइम पास करो, हमें छुट्टी दो, टीवी देख करके टाइम पास करो, और उनको बिना किसी टीवी के, बिना किसी टैबलेट के उनको 8-8 घंटे हैंडल करना, वो भी उनको एजुकेशन देते हुए, ऐसा नहीं कि खाली बैठा करके टाइम पास कराना, पढ़ाई लिखाई के साथ उनको डिसिप्लिन सिखाने के साथ, इंडियन कल्चर सिखाने के साथ, मॉडर्न एजुकेशन देने के साथ, उनको उनके साथ डील करना अच्छे 7-8 घंटे तक, ये कितना कष्ट का काम है। जो लोग करते हैं, जो लोग देखते हैं, उनको पता है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमारा सम्मान उनके प्रति बढ़ जाता है। हमारे प्राचीन उपनिषदों में, बृहदारण्यक उपनिषद में मंत्र आता है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वैसे कुछ लोग उसको खाते खाते समय आजकल बोलते हैं। स्वाध्याय कम होने पर क्या होता है, करोड़ों लोग कैसे भ्रष्ट हो जाते हैं, इसका नमूना होता है। आजकल बहुत सारे लोग इसको खाते समय बोलते हैं, सहना भवतु। ये विद्या का मंत्र है, गुरु और शिष्य का मंत्र है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हम दोनों को साथ साथ रक्षा करो, सहनौ भुनक्तु, हम दोनों को साथ साथ पालो, सहवीर्यम करवावहै, हम दोनों स्टूडेंट और टीचर जो कुछ भी करे वो वीर्यशाली हो, वो तेजस्वी हो, माँ विद्विषावहै, हम एक दूसरे की प्रति कोई द्वेष भाव न रखे। अब मुझे नहीं पता कैसे कुछ लोगों ने इसका मंत्र कहाँ से बगाड़ा, वो भुनक्तु शब्द से खाना ले लिया। अब अगर अर्थ निकाले तो होगा, हे भगवान हमको साथ साथ खाएं। अब क्यों खाते समय लोग मंत्र बोलते हैं, मैं समझा समझा कर थक गया बहुत सारे लोगों को। पर जब परंपरा चल पड़ती है, वो अंधी होकर चलती है, कोई ना वहाँ आग दिखता है ना प्रकाश दिखता है, परंपरा तो अंधी ही चलती है। तो अंधी चल पड़ी। तो यही
टीचर और स्टूडेंट, विद्यार्थी और गुरुओं के प्रति गुरुओं का जो संबंध है वो उसको दिखाता है। यकीन मानिए सज्जनों देवियों, माँ बाप का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों के प्रति, उससे कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, और ख़ास करके जो छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ानी होती है। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में ये तैत्तिरीय उपनिषद में वाक्य आता है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्योत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। अगर सचमुच आपको ज्ञान का विकास करना है तो ज्ञान जो नॉलेज है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो टीचर होता है, गुरु होता है। उसका जो सेकंड नेसेसरी चीज है वो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है। और उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो लिंक है, वो टीचिंग है। और उससे होगा क्या, अगर सही गुरु, सही विद्यार्थी हो और सही टीचिंग मेथड हो तो उससे ज्ञान पनपता है, ज्ञान बढ़ता है। यही गुरु का महत्व है। और इसीलिए हमारे यहाँ गुरुओं के प्रति जो सम्मान भाव है वो इसीलिए है कि गुरुओं का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना है। वो अलग बात है कि उसको भी हाईजैक कर लिया बाबाओं ने, पंडितों ने, वो सन्यासियों ने, गुरुओं ने हाईजैक कर लिया। बेचारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर तनख्वाह में रह गए, और जो कभी एक बार गायत्री मंत्र समझा करके गुरु बन गया, साल भर भक्त उसी के चरण में गिर गए। ये बड़ा अद्भुत समाज है हमारा। असली गुरुओं को तो हम पूछते नहीं है, और नकली गुरुओं को गुरु भगवान बना करके पूजने लग जाते हैं। ये बड़ा विचित्र मानसिकता है हिंदुओं की। ये बदलने की जरूरत है। सज्जनों देवियों, जब आप हवन करते थे ना, तो हवन में जो लकड़ियां आप डालते हैं उसको समिधा बोलते हैं। समिधा का अर्थ होता है जो अच्छी तरह जलता है। समिधा के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए गुरुकुल में जो प्राचीन काल में ब्रह्मचारी विद्यार्थी होते थे, उनको गुरुकुल में जो उनको सर्विस करना होता था, पहला काम होता था समिधाएं कलेक्ट करना। हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में आता है कि आचार्य अग्नि, जो टीचर है वो आग है। शिष्य अंतेवासी समिधा, जो स्टूडेंट है वो समिधा है, लकड़ी है। क्योंकि आग अपने आप में नहीं जल सकता, आग को कोई सहारा चाहिए ना। जब लकड़ी जलती है तो वो आग है, बिना लकड़ी के आग नहीं होता ना। आग तो एनर्जी में बना रहता है, उसको कोई सहारा चाहिए, कुछ जलने लायक फ्यूल चाहिए, जिसको आप ईंधन कहते हैं। कल तक टीचर जो था वो स्टूडेंट था, वो समिधा था, लकड़ी थी। वो गुरु के पास रह करके तप करके अपने आप को आग बनाया। आज वो आग जल रहा है, फिर आप नई लकड़ी डालते हैं। वो नई लकड़ी भी जैसे ही अग्नि के सानिध्य में आता है, वो धीरे धीरे अग्नि को आत्मसात करता है, एक्सेप्ट करता है, और खुद आग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे वो समिधा के तरह हैं, वो घड़े के तरह हैं, कच्चे घड़े के तरह, जिनको ठोक पीट करके हमारे जो टीचर्स हैं उनको सही बनाते हैं। तो अच्छा है कि हम उन टीचरों को दिल से रेस्पेक्ट करें, सम्मान दें। वो अमेरिकन स्टाइल में नहीं, इंडियन स्टाइल में उनको वो सम्मान दें। उनके प्रति अंदर वो सम्मान भाव रखें कि हमारे उन बच्चों को, जिनको हम माँ बाप होकर भी उनको संभाल नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, दुनिया भर के टाइम पास के खिलौना पकड़ा करके उनको बिजी रखते हैं। हमारे उन बच्चों को हमारे ये पूजनीय टीचरों ने उनको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको संभाल के रखते हैं। उनके प्रति भी हमारा प्रणाम है। आज के इस सुंदर शुभ दिन पर हम उन शिक्षकों को प्रणाम करते हैं जो हमारे बच्चों को इतना अच्छी शिक्षा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और दोबारा आप सबको अभिनंदन है, श्रावणी पूर्णिमा का स्वाध्याय जरूर करें। आपको अभिनंदन है रक्षाबंधन का, अपने देश समाज की रक्षा के लिए व्रत लें। आप सबको अभिनंदन है गोवर्धन पर्व का, अपनी गाय माता की रक्षा के लिए जितना हो सके संकल्प करें। और आप सबको अभिनंदन है संस्कृत दिवस का। ये हमारा गौरव है, हमारे देश का गौरव है कि संस्कृत भाषा भारत में पनपी है, जिसके कारण हमारे पास इतने तरह के शास्त्र मौजूद हैं। आप सबको दोबारा बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय आचार्य जी, मातृशक्ति, सुधीजनों, भाइयों बहनों और बच्चों, आज के शुभ दिन में आपका आर्य समाज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास कुछ नाम आए हैं, उनमें से मनीषा शुक्ला, अनूप
अरूप गुप्ता, लग्नेश वार्ष्णे, सलमा हुसैन। यदि आप यहाँ पर हैं तो कृपया खड़ा हो जाएं। कुड यू प्लीज स्टैंड अप सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज यू एंड वेलकम यू टुडे। You are welcome here, and if you are around, come every Sunday. We have the same program every Sunday. मेरे को लगता है इससे ज़्यादा भी लोग हैं जो पहली बार हमारे बीच में हैं, तो उन सबका भी बहुत स्वागत है। जो रेगुलरली आते हैं उनका तो बहुत स्वागत है। आई वॉन्ट टू वेलकम एवरीबडी। मेरे को एक बार किसी ने कंप्लेन किया था कि हम हर रोज़ आते हैं तो हमारा स्वागत नहीं है क्या? नो, एवरीबडी इज़ वेलकम। तो जैसे काफ़ी पिछले 1 महीने से मैं अनाउंस करता आ रहा हूँ कि आर्य समाज ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन, हम अपना स्थापना दिवस, आवर फाउंडेशन डे, 23rd फाउंडेशन डे, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस कमिंग वीकेंड। तो 16 और 17 अगस्त को ये कार्यक्रम है। हम चतुर्वेद षटक यज्ञ कर रहे हैं। 4 सत्र होंगे, शनिवार सुबह से लेके रविवार शाम तक। तो सुबह का कार्यक्रम 10 से 12 है और शाम का कार्यक्रम 6 से 8:30 है। इसमें हमारे बीच में भारत से आचार्य आशीष दर्शनाचार्य आ रहे हैं। बहुत ही वेद के विद्वान हैं, भारत में, अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर हैं। वो यहाँ पर प्रवचन करेंगे, हमारे आचार्य जी भी प्रवचन करेंगे। तो इस स्थापना दिवस जो है 17 को, जैसे आचार्य जी ने भी बताया, जन्माष्टमी है, तो 17 को हम जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 15 को भारत का स्वतंत्रता दिवस है, तो 16 की सुबह को हम भी यहाँ पे ध्वजारोहण करेंगे। तो वहीं से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। और ये जो यज्ञ है तो इसकी जो 16 को शुरू होगा शनिवार सुबह, पूर्ण आहुति जो है वो रविवार शाम को डाली जाएगी। तो इसमें म्यूज़िकल कार्यक्रम भी है। हमारे लोकल आर्टिस्ट स्मृति जी और विनीता अरोड़ा जी, वो बहुत सुंदर कार्यक्रम शाम को, शनिवार शाम और रविवार शाम को भी ये कार्यक्रम है। वी एक्सपेक्ट एंड वी वुड लाइक you all to join with your family and friends here to celebrate the foundation day of the Arya Samaj. So if you want to be Yajman, it's not too late. You can contact me after the Aarti and give me your names. We will try to include whenever possible. तो अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, तो आप यदि यजमान बनना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हमें वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू वॉलंटियर तो मुझसे या भूषण वर्मा जी से संपर्क करिए, तो वी कैन असाइन सम ड्यूटीज़, क्योंकि बिना वॉलंटियर से ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। DAV संस्कृति स्कूल, जैसे आचार्य जी अभी बोल रहे थे कि स्वयं अध्ययन की ज़रूरत है, और यहाँ पर हमारे बीच में बच्चों को भारतीय संस्कृति और धर्म से जोड़े रखने के लिए ये DAV आर्य समाज ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन का ये भी एक एफर्ट है। मॉन्टेसरी स्कूल इज़ वन थिंग, अनदर थिंग विच वी डू for the older kids is the DAV Sanskriti School, which is a Sunday school, which also runs every Sunday, which is starting from 24th of August for this. It starts with the school calendar of most of the school districts here in the Houston area. So, and it runs through from August end to May. This school year runs, and the admissions are open. You can go to the website of Arya Samaj Greater Houston, which is aryasamajhouston.org, और उसमें DAV SS करके ऊपर ही एक टैब है, उसको क्लिक करके you will find how you can enroll your kids for this coming school year. तो उसकी जो है, this is the last date is approaching fast. I think next weekend, next Sunday is the last date to enroll. तो वेबसाइट पे जाके you can get the forms. You can also contact मीनू जी और आशुतोष जी। यदि आशुतोष जी यहाँ पर हैं तो कृपया, is not around, or you can contact me if you want your wards, your kids. So we take kids from 5 year to high schoolers. So they are all part of this DAV Sanskriti School. यदि if you are interested तो aryasamajhouston.org पे जाके इसकी अधिक जानकारी है, तो you can make the full use of that.
And with that, I will request everybody to stand up for Aarti, please. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं दया मैं ऐसी दो सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त बढ़ाओ करुणा प्रेम बढ़ाओ वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धार।
सर्वगुण शांति पृथ्वी शांतिरापाः शान्तिरोषधयाः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण की, महर्षि दयानंद की। ओम का झंडा, आर्य समाज, वेद की ज्योति, प्रणव ध्वनि। ओम। सबको सादर नमस्ते।